anyone बात ही है। here who can say, I hold on to the prophecy which the Lord has spoken over me? क्या आप में से कोई है जो बोल सके हाँ मैं उस भविष्यवाणी को पकड़े बैठा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दी है? I know there are prophecies over me. The world will speak about you. संसार आपके बारे में बोलेगा। The Jesus which we saw 2026 years ago, I see in you. वो यीशु जिसे हमने इतने साल पहले देखा था उसे हम आप में देखते हैं। When people will see you, जब लोग आपको देखेंगे they would say, I see the nature of Jesus in you. वो कहेंगे हम यीशु के स्वभाव को आपके अंदर देखते हैं। An authorized पर person, एक अधिकारी व्यक्ति, a powerful moving person. एक सामर्थ्य में चलने वाला I व्यक्ति, see Jesus in मैं you. यीशु देखता हूँ आप में। Why prophecies miss? कई बार भविष्यवाणी क्यों अधूरी रह जाती है? Because that prophecy is not from spirit but from feeling. क्योंकि वो भविष्यवाणी जो है वो आत्मा से नहीं बल्कि वो भावना से है। Why that prophecy is from feeling? क्यों वो भविष्यवाणी भावनाओं से है? You know who is a prophet? पता है भविष्यवक्ता कौन है? Prophet is the one who brings the timeline according to the realms of God. भविष्यवक्ता वो है जो समय काल को परमेश्वर के स्तर के अनुसार ले आए। Spirit realm, something is shifting. वातावरण बदल रहा है Right आत्मा now, में। right here. अभी इसी वक्त Something is shifting. कुछ चीजें परिवर्तन में आ Oh, रही है। yes. Bara shante re re. Things which claim over you. वो चीजें जो आपके ऊपर खेल रही थी, Claim. जो आपके ऊपर कब्जा कर रही थी, हक जमाता है. आपके ऊपर हक जमा रही थी, It is losing its power. वो अपनी शक्ति को अपनी ताकत को खो रही है। It's losing its power. अपनी ताकत को खो रही है। Yes. Rebala shabthara prabara. Udabala judamana jaragadagani. Jesus. Oh. Rebalabos. Dabalabalabalabas Shantanaya. Rekanivania. Holy Spirit. Yes. कुछ 4 पीढ़ियों पहले, whatever the enemy has bound 4 generations back, जो कुछ भी शत्रु की आत्मा ने 4 पीढ़ियों पहले बांधा था, whatever the enemy has bound 4 generations back, जो कुछ भी शत्रु ने 4 पीढ़ियों पहले बांधा था, it is breaking right now. वो अभी टूट रहा है। It is breaking right वो now. अभी टूट रहा है। It is breaking right now. वो अभी टूट रहा है। It is losing its power वो right now. अपनी ताकत को खो रहा है Right now. अभी। Shelebronosia. Rekatalabaya. Rebene rebasiate. Vaidabana raba shataya. Redebos. Rebana judarabalaya. 4 generations. 4 generations. Four generations. 4 पीढ़ियां। Enemy always work 4 generations. शत्रु हमेशा 4 पीढ़ियों में काम करता है। How many years the people of Israel was in Egypt? और जो इजराइल के लोग थे वो कितने साल मिस्र में थे? It means इसका मतलब how many generations? कितनी पीढ़ियां? It means curses follow 4 generations. इसका मतलब अभिशाप पीछा करता है 4 पीढ़ियों तक। But today पर आज we nullify its hold. हम उसकी पकड़ को खंडित करते हैं। We nullify its hold. हम उसकी पकड़ को खत्म करते We हैं। nullify its hold. हम उसकी पकड़ को खत्म करते Not हैं। by power. ना सामर्थ से नहीं, Not by power. ना तो शक्ति से, Not by power. सामर्थ ना से तो बल से। नहीं, ना तो बल से, Not by power. ना तो बल से, Not by might. ना शक्ति से, But by the Spirit saith बल्कि the Lord. आत्मा के द्वारा, But by the Spirit saith the Lord. बल्कि परमेश्वर की आत्मा के ना द्वारा। तो बल से. Come on, speak. ना तो बल से.
ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, but by the Spirit of God, but by the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा के but by द्वारा, the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा के I द्वारा nullify every hold of the enemy. मैं शत्रु की हर एक पकड़ को खंडित करता हूँ। I nullify every hold of the enemy मैं शत्रु की हर एक पकड़ को खत्म in करता the हूँ mighty name of यीशु Jesus. के सामर्थ्य नाम I में। nullify by the Spirit of God. मैं इसे नलिफाई करता हूँ I परमेश्वर के nullify नाम it से। by the grace of Jesus. मैं यीशु के स्थान से इसे नलिफाई करता हूँ। I nullify it by the Spirit of God. मैं परमेश्वर की आत्मा में इसे खत्म करता Yes, हूँ। yes, speak this, speak, बोलने पाए, speak. बोलने पाए। Every hold on me, हर एक पकड़ जो मेरे ऊपर है, every hold on me, हर एक शत्रु की मेरे ऊपर जो पकड़ है, over my generation, 4 पीढ़ियों से, over my generation, मेरी पीढ़ियों के ऊपर, over my family, मेरे परिवार के ऊपर, I मैं nullify, इसे नलिफाई करती हूँ। I मैं इसे nullify नलिफाई करता by हूँ the name of यीशु Jesus, के सामर्थ्य नाम से, by the name of Jesus. यीशु के नाम में। The word kills. The word kills. शब्द मारता है, The word kills. शब्द मारता है, But the Spirit revives. पर आत्मा झिलाती है, The Spirit revives. आत्मा झिलाती है। I speak in the name of मैं Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम से बोलता हूँ। What word was spoken against you? जो कोई शब्द आपके विरुद्ध नहीं बोला जाएगा। Hey, what word spoken against you? जो भी शब्द आपके विरुद्ध बोला गया है, What witchcraft spoken against जो you? जादू टोना आपके खिलाफ बोला गया है, The Spirit will bring it into destruction. वो आत्मा उसे उस भटकाव की तरफ ले आएगी। The Spirit of God परमेश्वर का आत्मा will bring that word spoken against you. वो शब्द जो आपके खिलाफ बोले गए हैं, The Lord will bring it, परमेश्वर उसे लेकर आएगा and bring it into destruction. और उसे बर्बादी की तरफ लेकर आएगा। It means इसका मतलब the word which was spoken against you and your family, वो शब्द जो आपके और आपके परिवार के खिलाफ बोले गए the हैं, curse which is spoken against you and your family, वो अभिशाप जो आपके और आपके परिवार के खिलाफ बोले गए the हैं, witchcraft which spoke against you and your family, वो जादू टोने जो आपके और आपके परिवार के खिलाफ बोले गए it हैं, will be destroyed by the Spirit of God. वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बर्बाद कर दिए जाएंगे। It will be destroyed by the Spirit of God. वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नाश कर दिए Are you जाएंगे। with me? क्या आप मेरे साथ I हैं? am not bringing you knowledge. मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, I am not bringing you book understandings. मैं आपको किताब का ज्ञान नहीं दे रहा, But I am speaking from the Spirit of God. बल्कि मैं परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा हूँ। Whatever was dead in your life, जो कुछ भी आपके जीवन में मरा हुआ the है, calling which is dead over your life, वो बुलाहट जो आपके जीवन में मर गई है, let it be revived by the Spirit of God. वो जीने जिलाने पाए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, Let it be revived by the Spirit of God. वो जीवन में आने पाए यीशु के In नाम the से, mighty name of, यीशु के सामर्थ्य नाम से, in the mighty name of, in the mighty name of, hallelujah. Come on, speak in tongues, speak in tongues. अन्य भाषा में बोले। रबा शेखेरे Regadababa Shantalabaya Shmante Yabrando Siade Shmantala Prabatala Udabala Judamanati Rebana Duramania Udabala Dudagadamana Vaidabana Prabatane Rebane Dunadia Udabana Judabaladi Vaidabani Aprabati. Yes. Shataya Lebono Zeriade Ribanabarabosh Morokonozia Lebronozia Rebono Shatalabaye Rebanada Ragataya Adagadamana Judagadagadana Udagalamana Judagadagadana. Nehemiah, get ready. Nehemiah, get ready. Nehemiah, get ready. Nehemiah, get ready. Shateriada. Nehemiah, get ready. नेहमाया तैयार हो जाओ, Nehemiah, get ready नेहमाया तैयार हो to जाओ, build something. कुछ चीजों को बनाने To के लिए, build something. कुछ चीजों को बनाने To के build लिए, something. कुछ चीजों को बनाने
The के Lord लिए is aligning things for you. परमेश्वर आपके लिए चीजें अलाइनमेंट में ला रहा है। The Lord is bringing kings for you. परमेश्वर आपके लिए चीजों को ला रहा है। King. परमेश्वर आपके लिए राजा को लेकर आ रहा है। I speak to you. मैं आपसे बोलता हूँ। Sarfaraz, I speak to you. सरफराज, मैं आपसे बोलता हूँ। You fell many times. आप बहुत बार गिरे, You are not able to rise. आप उठने के लिए काबिल नहीं रह पाए। You are trying a lot, बहुत कोशिश कर रहे हैं आप, but every time fail. पर हर बार आप असमर्थ रहते हैं। Every time your family breaks, हर बार जब आपका परिवार टूटता है, you are desolated. आप उजड़ जाते हैं। But today, पर आज I speak to you. मैं आपसे बोलता हूँ, I come to you by the Spirit of Jesus. पर यीशु की आत्मा के द्वारा मैं आपके पास आता हूँ। Who is there to lift finger against you? कौन है जो तेरे विरुद्ध उंगली उठा सके? Who is there to complain against you? कौन है जो तेरे खिलाफ किसी इल्जाम को लगा सके? Who is there to speak about you that सरफराज तो ऐसा ही है? कौन है जो ऐसा बोल सकता है? There are many. बहुत हैं, There are many. ऐसे लोग बहुत हैं। But today, पर आज I come to you by the Spirit of Jesus. मैं यीशु की आत्मा के द्वारा आपके पास आता हूँ। From today, आज से, from today, आज से, from today, आज से। तेरे को और यीशु को कुछ बात अलग नहीं कर पाएगा. आमीन। There will be nothing which would be able to separate you and Jesus. तुझे और यीशु को कोई बात अलग नहीं कर सकती। From today, आज से I call you as a new creation. मैं तुझे एक नई सृष्टि करके बुलाता हूँ। In the name of Jesus, यीशु के नाम में every spirit which is attacking him day and night, हर एक आत्मा जो दिन रात आप पर हमला कर रही है, I come against it by the Spirit of God. मैं उसके पास आता हूँ यीशु की आत्मा के द्वारा। Every spirit of Jezebel, हर एक जेजेबेल की आत्मा, every spirit of manipulation, हर एक भरमाने वाली आत्मा, I come against in the name of Jesus. मैं उसके पास यीशु के नाम से आता हूँ। In the name of the Father, Son and the Holy Spirit. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। The hand which I've kept over your head, वो हाथ जो मैंने आपके सर पर रखा है, it will be seen by the spirit realms, even if it is the demonic realm or the heavenly realm. आत्मिक स्तर पर ये हाथ जो मैंने तेरे सर पे रखा है वो लोग देख पाएंगे, चाहे वो दुष्ट आत्मा के स्तर पर हो या स्वर्ग के स्तर पर हो, That the hand of the Lord is upon you. कि परमेश्वर का हाथ तेरे सर पर है। The world will see. संसार ये देखेगा। Notice him. You may see him. आप देखेंगे Within next 2 years, अगले 2 सालों में he will rise up as a mighty man of God. एक सामर्थी परमेश्वर का जन बनकर खड़ा होगा। आमीन। Come here, come here, come here. Come here, come here, आगे आए। come here. Come here. Come on, pray, pray. Pray. कीप प्रेइंग, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। You know why he's crying, you know? पता है ये क्यों रो रहे हैं? Because the Spirit of the Lord is like a bulldozer. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक बुलडोजर की तरह इनके हृदय में काम कर रहा है। See his face very carefully. देखिए इनका चेहरा। Within 1 year, 1 साल के अंदर। तुम पहचान नहीं पाएगा। यस, आमेन। That's how the Lord is going to shift him. और इसी प्रकार से परमेश्वर इनके जीवन में बदलाव लाए। That's how you're going to see him. और इसी प्रकार से आप इन्हें Mightily देखेंगे moved.
सामर्थी रूप से चलते हुए, mightily moved. सामर्थी रूप से, In the mighty name of यीशु के Jesus. सामर्थी नाम In में, the mighty name of यीशु के Jesus. सामर्थी नाम In में, the mighty name of यीशु Jesus. के सामर्थी नाम में। Shala pranadia teredeni antene di antene. Tanana mazantene atalaba shmantene. Shmantene zabazi anteri di antana rigadagadana. Waital mara smanti rigadana rigadanaya. The Spirit of the Lord is actively moving right here. परमेश्वर का ये आत्मा सक्रिय रूप से यहाँ चलन में The है, Spirit of the Lord mightily moving right now. Here. सामर्थी रूप से परमेश्वर का आत्मा यहाँ चलन में है। Jesus. May the wind of the Lord start to move. परमेश्वर की वो हवा चलने पाए। The wind of the Lord is already moving. परमेश्वर की हवा पहले ही चल रही है, The wind of the Lord is already moving. परमेश्वर की हवा चल रही है। I see a cloud rising. मैं एक बादल को उठते हुए देख रहा I हूँ, see a cloud is rising. मैं एक बादल को उठते हुए देख रहा हूँ, I see a cloud is rising. मैं एक बादल को उठते हुए देख रहा Yes, हूँ। yes, yes. Layanama shatalabaya. Jesus. Hallelujah. 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 The Lord is here. परमेश्वर यहाँ है, The Lord is here. परमेश्वर यहाँ है। How many can say boldly the Lord is here? कितने लोग दृढ़ता से इसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर यहाँ है? I see a vision. मैं एक दर्शन को देख रहा हूँ, A man is standing in front of his throne. एक व्यक्ति जो अपने सिंहासन के सामने खड़ा है, He rose up from his throne. वो अपने सिंहासन से खड़ा हुआ, The Lord has rose up from his throne. परमेश्वर अपने सिंहासन से खड़ा हुआ। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? The Lord has risen up from his throne. परमेश्वर अपने सिंहासन से उठ चुका है, And I see in the realms of the Spirit और मैं आत्मा के स्तर पर इसे देख रहा हूँ that the Lord is looking down to you. कि परमेश्वर आपको ऊपर से देख The रहा है, Lord is looking up to you. परमेश्वर आपको देख रहा है, The Lord is looking up to you. परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है, Because there is a generation is rising of his own cells. क्योंकि उसके पीढ़ियों की एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, His own image. उसके खुद की सूरत और समानता की Yes, a generation is rising. एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। Yes, a season where the Lord is lifting up prophets. एक ऐसी पीढ़ी जहाँ पर परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को खड़ा कर रहा है। These prophets are not called to prophesy about feelings. और ये भविष्यवक्ता केवल They are not called to भावनाओं के बारे prophesy में from feelings. वो भावनाओं के द्वारा भविष्यवाणी नहीं करेंगे, But these prophets will prophesy from the voice of God. बल्कि ये भविष्यवाणी करेंगे परमेश्वर की आवाज के द्वारा। Many a times, बहुत बार why prophecies miss? कई बार भविष्यवाणी क्यों अधूरी रह जाती है? Because that prophecy is not from spirit but from feeling. क्योंकि वो भविष्यवाणी जो है वो आत्मा से नहीं बल्कि वो भावना से है। Why that prophecy is from feeling? क्यों वो भविष्यवाणी भावनाओं से है?
Because that prophet is not healed. क्योंकि वो जो भविष्यवक्ता है वो अभी चंगा नहीं है। Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बता सकता Are हूँ? you with me? क्या आप मेरे साथ Can हैं? I talk to you? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? Solomon was used by God, सुलेमान को परमेश्वर ने इस्तेमाल करा, but पर still फिर भी he fell because of his feelings. वो अपने अपने भावनाओं के कारण वो गिर गया। Hello, is anyone here? A prophecy by the prophet of God, एक भविष्यवाणी भविष्यवक्ता के द्वारा it never falls. वो कभी भी गिरती नहीं है, It is completed by heaven. वो स्वर्ग के द्वारा पूरी की जाती है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Even if that prophecy is at the point to be over. चाहे वो भविष्यवाणी बिल्कुल ना पूरी होने के कगार पर हो तो भी। For example, उदाहरण के if लिए the prophet told you that a prophet told you a prophecy that within 3 months, by the end of 3 months, this will happen for you. उदाहरण के लिए अगर कोई भविष्यवक्ता आपको कहता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपके लिए ये हो जाएगा, By the end of the 3rd month. तीसरे महीने के अंत होने तक ये आपके लिए पूरा हो जाएगा। But January is over, February is over, March 29 has come, but nothing happened. पर जनवरी चला गया, फरवरी और मार्च का 29 तारीख आ चुकी है, Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। But suddenly, पर अचानक the Spirit of the Lord will steer your spirit. परमेश्वर का आत्मा आपके मन में एक विवशता को लेकर आएगा That you should sit in prayer. कि तुझे प्रार्थना में बैठना है, Or the Lord will send somebody for you या फिर परमेश्वर आपके लिए किसी व्यक्ति को भेजेगा who will intercede for you in prayer. जो आपके लिए मध्यस्थता करे प्रार्थना में। You know why? पता है क्यों? Because the time of delivery has come. क्योंकि वो डिलीवरी का समय आ चुका है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? For example, उदाहरण के लिए if Rajesh is carrying a prophecy, अगर राजेश के पास एक भविष्यवाणी Rajesh, है, na? Ravi is carrying a prophecy. अगर रवि के पास एक भविष्यवाणी है, He is carrying it, वो उसे लेकर चल रहा है, but पर doesn't know what will happen. नहीं जानता कि क्या होगा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? He needs somebody to deliver him. वो उसे किसी की जरूरत है जो उसे छुटकारा दे सके, Delivery. जो उस डिलीवरी में उसकी सहायता कर सके। Without the help, he cannot do the delivery. बिना सहायता के वो डिलीवरी नहीं हो सकती। He will go through the prasav pida. वो उस प्रसव पीड़ा से तो गुजरेगा। When God, when God, when God, why God? कब होगा, कैसे होगा? Carrying a prophecy. एक भविष्यवाणी को लेकर It is चलना very painful. बहुत ही दर्दनाक है, Heavy time. एक कठिन समय, But पर at the right moment, एक सही समय पर the Lord will send a nurse. परमेश्वर एक नर्स को The भेजेगा, Lord will send a doctor परमेश्वर एक डॉक्टर को who will भेजेगा help her जो मदद करेगा to deliver the child. उस बच्चे के जन्म होने में। It means इसका मतलब you are carrying a prophecy, अगर आप एक भविष्यवाणी को लेकर चल रहे हैं and even the time has come when the prophecy is about to, the date has come when it has to be established. और वो समय बिल्कुल आ चुका है जब ये जो वाणी थी, ये भविष्यवाणी पूरी होनी थी, But still the time is coming closer, nothing happening. समय बहुत करीब आ रहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। At the urge, पर वो बिल्कुल at the point, खत्म होने की सीमा पर the Lord will rise up Daniel परमेश्वर दानियल को खड़ा कर देगा to pray. प्रार्थना करने के लिए, To pray. प्रार्थना करने You के know लिए। how? पता है कैसे? With the prophecy which was spoken 70 years ago. उस भविष्यवाणी के द्वारा जो 70 साल पहले बोली गई थी। Daniel will pray with a prayer of prophecy of 70 years ago. दानियल एक 70 साल पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार प्रार्थना करेगा। Can I ask you? क्या मैं आपसे पूछ सकता How हूँ many people pray with the prophecy which you received last week? कितने लोग हैं ऐसे जो प्रार्थना में इस तरीके से करते हैं कि उस भविष्यवाणी को लेकर करते हैं जो आपने पिछले ही हफ्ते जिस भविष्यवाणी You को पाया hold है। on to the prophecy. क्या आप उस भविष्यवाणी को पकड़ कर चलते हैं? Hello? No. नहीं, Your yes is false. आपका जो हाँ है वो झूठा है। You wait for the entire 1 week. आप पूरे एक हफ्ते के लिए इंतजार करते And after 1 week, और उस एक हफ्ते के बाद you would be like, false prophet.
आप कहेंगे झूठा भविष्यवक्ता, The prophecy didn't fulfilled. वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। You wait for the prophecy to be fulfilled. आप इंतजार करेंगे भविष्यवाणी पूरे होने का। The Lord is seeing you. प्रभु आपको देख रहा है Array, he is not ready to receive this prophecy. कि ये तो तैयार ही नहीं है इस भविष्यवाणी के लिए। If I will even fulfill this for him, अगर मैं इस भविष्यवाणी को पूरा भी he कर is दूं, not prepared to carry it. तो वो तैयार नहीं है इसे लेकर चलने के लिए। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? When the Lord will send people जब परमेश्वर लोगों को भेजता है with a prophetic word for you, एक भविष्य सूचक शब्द के साथ आपके लिए, you have to carry it. तो आपको उसे कैरी करना है, Speak over it. आपको इसके ऊपर बोलना है, Declare over it. इसके ऊपर घोषणा करनी है। You know why? पता है क्यों? Because the word of the Lord says, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, remind me of the promises I have made with you. जो वायदे मैंने तुझसे करे हैं उसके लिए मुझे याद दिला, Remind me. याद दिला। Did God forgot? क्या परमेश्वर भूल गया? No. नहीं, God didn't forget the prophecy which God spoke to Amrik. परमेश्वर भूला नहीं है उन भविष्यवाणियों को जो उसने अमरिक से करी है। He knows the prophecy. वो जानता है भविष्यवाणियों He को, knows what is the due time. वो जानता है कि अंतिम समय की घड़ी पहुंच चुकी है, Due time. समय पहुंच चुका है। When is the time to deliver? जब ये जो है ये डिलीवर होने का समय आ चुका है। God knows what is the time. परमेश्वर जानता है वो समय कौन सा है। But can I tell you पर क्या मैं आपको बता सकता why हूँ you need to carry your prophecy? आपको अपनी भविष्यवाणी को लेकर चलने की जरूरत क्यों है? Because क्योंकि you will not hide your prophecy. आप अपनी भविष्यवाणी को छुपाएंगे नहीं, You would walk with your prophecy. आप अपनी भविष्यवाणी के साथ चलेंगे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? I am carrying my prophecy. और अपनी भविष्यवाणी को लेकर चलेंगे। Hello. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? When you are carrying it, जब आप उससे लेकर चलेंगे, you know it. आप जानेंगे It is not just something which spoke, ये सिर्फ वही नहीं है जो बोला गया है, but it is something which will be physical. बल्कि ये वो है जो शारीरिक रूप में पूरा हो चुका है, पूरा होगा. शारीरिक रूप में भी पूरा होगा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Why God needs you to carry your prophecy? परमेश्वर क्यों चाहता है कि आपको अपनी भविष्यवाणी लेकर चलनी है? You know why? पता है क्यों? Because क्योंकि when the due time will come, जब डिलीवरी का समय आएगा, is there any mothers here? क्या कोई यहाँ पर माताएं हैं? Do you enjoy the delivery? क्या डिलीवरी का समय आपने बहुत एंजॉय करा था? Huh? You enjoyed it? No, na? What you did? You kept quiet. Okay, deliver. What you did? आपने क्या किया? It means you are declaring, baby is coming. मतलब आप घोषणा कर रहे हैं कि हाँ बच्चे का जन्म हो रहा है। Yes, you are shouting. You are shouting. आप चिल्ला रहे हैं, And when you are shouting, और जब आप चिल्ला रहे हैं everybody in the hospital knows there is somebody pregnant. कि हॉस्पिटल में सब लोग जान जाते हैं कि कोई है Everybody pregnant। know that somebody is giving birth to a baby. सब लोग जान जाते हैं कि कोई जन्म दे रहा है। Declaration. घोषणा Not to only yourself, सिर्फ खुद से नहीं, but everything around you. आपके आसपास हर एक चीजों से You are declaring it over everything around you. आप घोषणा करते हैं, हर चीजों से। God, परमेश्वर, you have promised me. आपने मुझे वायदा This is किया my है। prophecy. ये मेरी प्रोफेसी, This is my word. ये मेरा शब्द I है। speak and declare. मैं बोलता और The घोषणा due करता time हूँ has come. The due time has come. कि वो समय आ The चुका delivery है। time has वो come. डिलीवरी का समय आ So you चुका have to work for me. है। इसलिए आपको मेरे लिए You काम will करना sit in the होगा। presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में And बैठेंगे you will be like Marabashantele Beriata Maroko Siante. And when this is happening, और जब ये हो रहा and होगा, when this is happening, और जब ये हो रहा होगा, the vision which I saw, जो दर्शन मैंने देखा है it will happen. वो होगा, God will rise up. परमेश्वर उठ जाएगा। Yes, the time has come. हाँ, समय आ गया The है, time has come. समय आ गया है। I have to come down for you. मुझे तेरे लिए नीचे उतरना The होगा। time has come. वो समय आ गया है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ Are हैं? you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बता When सकता हूँ? Daniel was fasting and praying, जब दानियल उपवास और प्रार्थना में था, historically,
इतिहास बताता है he was carrying the prophecy which was 70 years ago. वो उस भविष्यवाणी को लेकर चल रहा था जो 70 साल पुरानी थी। It means the prophecy is after 70 years you will have a good news. इसका मतलब वो भविष्यवाणी थी कि ये 70 साल बाद आपको ये खुशखबरी मिलेगी। But Daniel read the prophecy पर दानियल ने उस भविष्यवाणी को पढ़ा and Daniel said, और दानियल ने कहा I cannot wait for 70 मैं years. 70 साल के लिए इंतजार नहीं कर I सकता। cannot wait that 70 years will go by. मैं 70 साल के लिए नहीं कर सकता मैं इंतजार। 70 साल के पूरे होने का इंतजार नहीं कर सकता. I cannot wait for 70 years to go by. मैं 70 साल पूरे होने का इंतजार नहीं कर But सकता, I speak पर मैं बोलता हूँ from the realms of glory of God. महिमा के आत्मा के स्तर From the से, realms of glory of God. महिमा के स्तर से मैं बोलता From the हूँ, realms of the glory of God. परमेश्वर की महिमा के स्तर से बोलता हूँ That this should come pass right now. कि ये अभी पूरा होने Because पाए, it is a prophecy 70 years back. क्योंकि ये 70 साल पुरानी भविष्यवाणी It is है। a 70 years old prophecy. ये 70 साल पुरानी And भविष्यवाणी the है prophecy is, और भविष्यवाणी ये है, number one, पहली, I will deliver you after 70 years with a good news. मैं एक खुशखबरी के साथ तुझे 70 साल बाद खुशखबरी दूंगा। And another prophecy is, और दूसरी प्रोफेसी ये है which was 150 years before, जो 150 साल पुरानी है that कि I will send you a Cyrus. कि मैं तेरे लिए कुस्त्रु को भेजूंगा। But Cyrus is there. पर कुस्त्रु वहां है, Cyrus is there at the time of Daniel. दानियल के समय पर कुस्त्रु है। The king who is ruling even over Babylon is Cyrus. वो राजा जो बेबीलोन के ऊपर भी राज कर रहा है वो कुस्त्रु है, Because the king of Persia, that is Cyrus, he victoriously took Babylon. क्योंकि फारस का राजा कुस्त्रु उसने जीत लिया है बेबीलोन को भी। It means इसका मतलब the king over Babylon is also Cyrus. मतलब बेबीलोन के ऊपर जो राजा है वो भी कुस्त्रु है। The prophecy is not fulfilled yet. पर भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई, Cyrus is there. कुस्त्रु वहां है, The prophecy is not happening. पर भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही। But Daniel stood in the gap. पर दानियल उस स्थान पर खड़ा हो गया। Daniel stood in the place, दानियल उस स्थान पर खड़ा हो गया, in the gap उस गैप पर between the prophecy भविष्यवाणी and between the time to be fulfilled. और उस समय काल जब वो पूरी होनी है। And he said, right now I stand in the gap. और वो बोलता है मैं इस गैप के बीच में, And I come in the gap of this prophecy and the time period. मैं इस खाली स्थान के बीच में खड़ा होता हूँ जो मेरी भविष्यवाणी और पूरे होने के बीच में है। You know who is a prophet? पता है भविष्यवक्ता कौन है? Prophet is the one who brings the timeline according to the realms of God. भविष्यवक्ता वो है जो समय काल को परमेश्वर के स्तर के अनुसार ले आए। Whatever is delayed. जो कुछ भी देरी में चल रहा है। Hello. 3.5 साल there is no rain. 3.5 साल तक कोई बारिश नहीं। But the one widow and family they are eating good bread. पर एक जो विधवा पत्नी है वो विधवा और परिवार. विधवा परिवार है वो खाना खा रहे हैं। They are having good bread. वो अच्छा खाना खा रहे हैं। They are having good grains. वो अच्छा अनाज ले रहे हैं। They are having good oil. वो अच्छा तेल ले रहे हैं। When a prophet comes, जब भविष्यवक्ता आता he है comes between the time period and the prophecy. वो उस समय काल के और उस भविष्यवाणी के बीच में आ जाता है। क्या कोई यहाँ है जो समझा? Example. उदाहरण के लिए Give me 2 chairs. One is time, the prophecy. एक है भविष्यवाणी, 3.5 years, no rain. 3.5 साल कोई बारिश नहीं। Now, timeline. और ये है समय काल। How long we don't know. कितना लंबा हमें नहीं पता। We know because we read. हमें पता है क्योंकि हमने पढ़ा है। But Elisha don't know पर एलिशा को ये नहीं पता when the drought will go over. कब ये सूखा खत्म होगा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? But Elijah. एलिया। But what happened? पर क्या हुआ? There is a woman. एक स्त्री है, A widow. एक विधवा स्त्री, Between the prophecy and between the timeline. उस भविष्यवाणी और उस समय काल के बीच में She is in lack. वो कमी में चल रही है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? But a prophet comes पर एक भविष्यवक्ता आता है
with a word, एक शब्द के साथ, even in between the prophecy उस भविष्यवाणी and even between the dryness, और उस सूखेपन के बीच I में will give you good bread. मैं तुझे अच्छा भोजन खाने को दूंगा। Means इसका मतलब a prophet can change the timeline for certain people. एक भविष्य वक्ता कुछ लोगों के जीवन का समय काल बदल सकता है। Means a prophet can change the time season. इसका मतलब एक भविष्य वक्ता उस समय को बदल सकता है। When the world will be going through drought, जब वो शब्द सूखेपन से गुजर रहा the था, world will be going through drought. जब वो दुनिया सूखेपन से गुजर रही थी, You know what happens? आपको पता है क्या हुआ? A prophet comes and gives you bread. एक भविष्य वक्ता आता है और आपको भोजन देता है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ Are हैं? you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बता There सकता was a prophet हूँ? एक भविष्य वक्ता था, who had 2 children उसके 2 बच्चे थे, and he died. वो मर गया। And when his wife came to the prophet Elisha, और जब उसकी पत्नी भविष्यवक्ता एलिया के पास एलिशा के पास आई, you know what happened? आपको पता है क्या हुआ? She said, your servant, the prophet of God, उसने कहा तेरा दास who was a prophet, जो कि भविष्यवक्ता है, he is dead. वो मर गया, But there is a lot of debt. पर बहुत सारा कर्जा है। Now, और अब because of the debt, उस कर्ज के कारण my sons are going to be a servant to the master who gave money. मेरे जो बच्चे हैं वो उस स्वामी के कर्जदार होने के कारण वो बंधुआई में हो जाएंगे। She came to the prophet. वो भविष्यवक्ता के पास आई। You know why? पता है क्यों? Because prophet is very rich. क्योंकि भविष्यवक्ता बहुत ही अमीर है। But पर the servant of the prophet is not rich. जो उस भविष्यवक्ता का जो दास है वो धनी नहीं है। You know why? पता है क्यों? There is a secret. इसके लिए एक गुप्त बात है। Because his prophecy is false. क्योंकि उसकी भविष्यवाणी झूठी है। गिर जाती है. क्योंकि इसकी भविष्यवाणी गिर जाती है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Because क्योंकि his children are young. उसके बच्चे अभी छोटे हैं। But the prophet already died. पर भविष्यवक्ता पहले ही मर गया। Who भविष्यवक्ता? कौन भविष्यवक्ता? Who भविष्यवक्ता? कौन भविष्यवक्ता? जो बच्चों का पिता, the servant of the prophet. उस भविष्यवक्ता का दास, He died. वो मर गया। The Bible says बाइबल बताती है that a person who dies in the young age, वो व्यक्ति जो जवानी में ही मर जाए, those who doesn't live a long life, जो एक दीर्घायु का जीवन ना जिए, he died because of a curse. तो वो कर्ज के द्वारा मर जाते हैं। कर्ज नहीं, curse. वो अभिशाप के कारण मर जाते हैं। Are you with me? So it means इसका मतलब he was not a right prophet. इसका मतलब वो एक सच्चा भविष्यवक्ता नहीं था। Hello? The prophet to whom this woman came, जिस भविष्यवक्ता के पास ये स्त्री आई, that prophet Elisha was rich. वो भविष्यवक्ता एलिशा वो धनी व्यक्ति था। Why I say he was rich? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो धनी व्यक्ति था? Because Naaman came to meet Elisha. क्योंकि नामान आया भविष्यवक्ता एलिशा के पास। He brought quintals of gold and silver. वो टनों में सोना लेकर आया। सोना चांदी लेकर आया। सोना चांदी लेकर आया। Amen. It means Naaman is very rich. इसका मतलब नामान बहुत ही धनी व्यक्ति है। It means इसका मतलब when Naaman came to Elisha with gold and silver, जब नामान एलिशा के पास सोने और चांदी के साथ आया, Naaman said, Elisha said, I don't want your gold and silver, your royal garments. Take it away from me. एलिशा ने कहा मुझे तेरा सोना चांदी नहीं चाहिए और तेरे शाही वस्त्र नहीं चाहिए, इन्हें ले जा। You know why he denied? पता है उसने क्यों मना किया? Already Elisha पे बहुत है. He doesn't care about Naaman's little chiller. Are you with me? Are you with me? And to this prophet, और इस भविष्यवक्ता के पास this widow is coming ये विधवा स्त्री आती है and telling, और कह रही है I am in debt. मैं कर्ज में हूँ। You know what happens? पता है क्या होता है? Elisha says, what do you have? एलिशा कहता है तेरे पास क्या है? She says, I have little oil. वो कहती है मेरे पास थोड़ा सा तेल है। Today I ask you, what do you have? मैं आज आपसे पूछता हूँ आपके पास क्या है? What do you have? आपके पास क्या है?
Huh? You might say, I have 5-liter jar of oil at home. आप कहेंगे मेरे पास 5 लीटर तेल है घर पर, I have chicken, mutton in my fridge. चिकन और मटन है फ्रिज में। But today I speak to you by the Spirit of God. What do you have? पर आज मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपसे पूछता हूँ, आपके पास क्या है? This woman said, I have little oil. इस स्त्री ने कहा मेरे पास थोड़ा तेल है। She said, I have little oil. उसने कहा मेरे पास थोड़ा तेल है। And now Elisha is speaking to the woman. और अब एलीशा उस स्त्री से कह रहा है, Go. जा Go and borrow some vessels. जा और कुछ बर्तनों को उधार ले ले। बाप रे, वैसे उधार में फिर से भविष्यवक्ता बोल रहे जाके उधार ले। क्या कोई है यहाँ पे? वैसे ही उधार में चल रहा है बाबा, और फिर से बोल रहे और उधार ले जा। क्या मेरे साथ है? She was told, go and get some more vessels, borrow some vessels. उसे ऐसा बोला गया कि जा और कुछ और बर्तनों को उधार ले ले। Keep it at your home. अपने घर पर रख, Close your door. अपने दरवाजे बंद Pray. कर, प्रार्थना कर। The oil will start to overflow. वो जो तेल है वो उमड़ने लगेगा। You collect oil in the vessels. तू उन तेल को इकट्ठा करना बर्तनों में। Till there is no vessels left, fill it. सारे जितने भी बर्तन उसने लिए थे वो She- सब she- भर no, गए। no, no. She filled all the vessels till she had nothing much left to borrow. वो उसने उतने बर्तन भर दिए कि और बर्तन उसके पास उधार लेने के लिए नहीं बचे। People didn't have any vessels anymore. लोगों के पास और बर्तन देने को नहीं बचा। She took everything. उसने सब कुछ ले लिया। You know what happened? पता है क्या हुआ? The oil kept on coming. वो तेल बहता जा The रहा oil kept on coming. वो उमड़ता जा The रहा oil kept on coming. तेल उमड़ता जा The रहा oil kept on तेल coming. उमड़ता जा The रहा oil kept on coming. वो उमड़ता जा रहा 1 vessel, एक बर्तन 2 vessel, 2 बर्तन 3 vessel, 3 बर्तन 4 vessel, 4 बर्तन overflow, overflow, ओवरफ्लो हो रहा था overflow, उमड़ रहा था overflow, उमड़ रहा था overflow, उमड़ रहा था overflow, उमड़ रहा था with little oil, थोड़े से तेल से with little oil. थोड़े से तेल She से came. Why this little oil overflowed? उसने कहा कि इतनी Why this little oil overflowed? क्यों ये थोड़ा सा तेल उमड़ने लगा? She obeyed. क्योंकि उसने आज्ञा को माना। Is anyone here? क्या कोई यहाँ है? She obeyed. उसने आज्ञा को माना And because she obeyed, और क्योंकि उसने आज्ञा को माना little oil थोड़ा तेल overflowed for her. उसके लिए उमड़ने लगा। When it overflowed, और जब ये उमड़ने लगा you know what happened? आपको पता है क्या हुआ? Prophet told her, भविष्यवक्ता ने उससे कहा go out बाहर जा with your oil अपने तेल के साथ and pay the debts. और अपने कर्ज को चुका दे। Hello? Hello? Is anyone here? क्या कोई यहाँ Is है? anyone here? क्या कोई यहाँ Is है? anyone here? क्या कोई यहाँ है? You know what is this debt? पता है ये कर्ज क्या है? This is not about specifically about just money. ये खास तौर पर पैसों के बारे में नहीं है। This is about what her husband has done. ये उसके बारे में है जो उसके पति ने करा था अतीत में। उसके पति ने बहुत गुनाह किया है. He misused the oil which was over him because of his spiritual father. उसने उस तेल का उस अभिषेक का गलत इस्तेमाल करा जो उसके ऊपर था। उसके पिता के द्वारा उसके ऊपर था. उसके आत्मिक पिता के द्वारा जो उसके ऊपर था। Amen. That has become a debt. वो कर्ज बन गया। And now she is coming saying, I have little oil. मेरे पास थोड़ा अभिषेक बचा है. और अब वो आई है थोड़े से तेल के साथ की मेरा थोड़ा अभिषेक बचा है. I have little oil left. मेरे पास थोड़ा सा तेल बचा है। The prophet said, और भविष्यवक्ता it कहता is है not about your money. ये तेरे पैसों के विषय में नहीं है। Money I can simply give you. पैसे मैं तुझे आसानी से दे सकता हूँ। Money I can just give you very easily. पैसे मैं तुझे बहुत आसानी से दे But सकता there हूँ। is a debt which your husband has made, you have to pay. एक कर्ज है जो तेरे पति के द्वारा तेरे ऊपर छोड़ा गया, वो तुझे चुकाना जरूरी है। And that debt is a spiritual debt. और वो कर्ज एक आत्मिक कर्ज है। It means इसका मतलब the son Elisha, जो पुत्र एलीशा था he had to be submissive with his father उसे अपने पिता के अधीन होना होगा and be useful as a vessel of anointing to his father. और अपने आत्मिक पिता के लिए उसे एक अभिषेक का बर्तन बन के इस्तेमाल कर होना होगा। But
पर he misused the oil. उसने उस तेल का गलत इस्तेमाल करा। Hello. Is anyone here? क्या कोई यहाँ है? Is anyone here? क्या कोई यहाँ Here, है? look at me. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ Do हैं? you understood? क्या आप समझे? It's very dangerous. ये बहुत खतरनाक है What this servant of prophet Elisha did. जो ये एलिशा के दास ने करा। Very dangerous. ये बहुत खतरनाक है। They were completely desolated वो पूरी तरह से उजड़ गए थे just because of what her husband done. सिर्फ इसलिए जो उसके पति ने जो कार्य करा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ? If you have little oil with you, अगर आपके पास थोड़ा तेल बचा है may the Spirit of the Lord overflow and send you back. तो परमेश्वर का आत्मा उसे उमाड़ के आपको भेजने पाए। Are you with me? क्या आप मेरे साथ Are हैं? you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? It means इसका मतलब I'm coming back to the word which I said मैं उस शब्द पर वचन पर वापस आ रहा हूं जो मैंने कहा that prophets can restore the timeline. कि भविष्यवक्ता समय काल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ It हैं? means इसका मतलब what the prophet, the father of these children done, इसका मतलब जो उस बच्चों के पिता ने करा था because of which the children have to follow the curse. और जिसकी वजह से उन बच्चों को उस अभिशाप का सामना करना पड़ा। Prophet changed the timeline. भविष्यवक्ता ने उस समय काल को बदल दिया। How he changed the और timeline? उसने कैसे समय काल को बदल दिया? By something which you carry. उससे जो आप लेकर चलते हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ Are हैं? you with me? क्या आप मेरे साथ It हैं? means the Lord carries a greater revelation over you. इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए एक बड़े प्रकाशन को The लेकर Lord चलता है। carries a greater prophetic word over you. परमेश्वर आपके ऊपर एक बड़े प्रकाशन, एक बड़े भविष्य सूचक शब्द को लेकर चलता It है। means the Lord wants you to carry greater oil in your life. इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि एक बड़े अभिषेक, एक बड़े तेल को आप अपने लिए लेकर चलें। And by the oil, और उस तेल के द्वारा every debts will be paid. हर एक कर्ज चुका दिया It जाएगा। means इसका मतलब by oil, उस तेल के द्वारा every curse will be paid. हर एक अभिषेक जो है, Curse, हर एक कर्ज जो है वो चुका दिए it will be जाएंगे, paid. वो चुका दिए It जाएंगे। means इसका मतलब by oil, तेल के द्वारा even every financial debt will be also paid. सारे जो भी आर्थिक जो कर्जे होंगे वो भी चुका दिए जाएंगे। There are two debts right now. अभी दो कर्जे हैं, पाप का भोग, पाप का भोग, पाप का भोग means the more you sinned, इसका मतलब जितना आप पाप करेंगे you are closer. आप करीब आ जाते हैं। Are you with me? To what? मृत्यु To what? किसके करीब आ जाते हैं? You're coming closer. आप करीब आ रहे हैं। But पर when you understood जब आप समझ जाते हैं that someone did wrong, किसी ने गलत किया, that's why Noah was sacrificing for his children. इसलिए नोहा जो था वो अपने बच्चों के लिए बलिदान करता That's था। why Job was making sacrifice for his children. इसलिए जो अय्यूब। अय्यूब था वो अपने बच्चों के लिए बलिदान करता था। He was paying the debts. वो कर्जों को चुका रहा था। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ Are हैं? you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? See, you might not see debt physically, हो सकता है आप कर्जों को शारीरिक तौर पर ना देख पाएं, but पर you would see debtness in your health and your finances. पर फिर आप कर्ज को अपने स्वास्थ्य में और अपने आर्थिक जीवन में देखेंगे। मृत्यु को अपने आर्थिक जीवन में और स्वास्थ्य में देखेंगे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? There are certain people who would have money in their pocket every time, at least 50, 100, 20, 2000. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास उनकी जेब में कम से कम 20,000, 10,000, 10,000, 500, 100, 10, 20, 50, कुछ भी. इतने They will have पैसे money. उनके पास पैसे होते हैं, But suddenly a time comes. पर अचानक ऐसा समय आता है Their finances are dried like anything. उनकी आर्थिक बातें जो होती है वो बिल्कुल सूख जाती हैं। I want you to bring you to a position where you can self-check. मैं आपको उस स्थान पर लेकर आना चाहता हूँ जहाँ आप अपने आप को परख सकें।
You can self check. आप अपने आप को परखने पाए Why this debt has come? क्यों ये कर्ज मेरे ऊपर आया, Why this death has come? क्यों ये मृत्यु मेरे ऊपर आई, Why I am under the oppression of the master of the world? क्यों मैं संसार के स्वामियों के अधीन हूँ। Are you with me? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Get ready. The Lord is going to change your timeline. तैयार हो जाए, परमेश्वर आपके समय काल को बदलने जा The रहा है। Lord has brought you to change the timeline. परमेश्वर आपको लेकर आया है वो आपके समय काल को बदलने The के Lord लिए। has brought you to change the shift the timeline. परमेश्वर आपको लाया है कि आपके समय काल में बदलाव कर पाए। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? The enemy would have stolen your 10 years, 5 years, 20 years. और शत्रु ने आपके 5 साल 10 साल चुरा लिए होंगे। But let me tell you, पर मैं आपको बता दूं, when the timeline shift, जब समय काल बदलता है, what you would have gained in the past 10 years, जो आपने पिछले 10 साल में पाया होगा, पाया होना था, जो आपको पिछले 10 साल में पाना था, when the timeline shift जब समय काल बदलता है by the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, it will be gained in your life within 10 months. वो 10 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। It will be given unto you within 10 months. वो आपको 10 महीने के अंदर मिल जाएगा, Because the timeline is shifted. जब समय काल बदलता है, Because the timeline is क्योंकि shifted. समय काल बदल गया है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ Are हैं? you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? It means इसका मतलब you will have supernatural speed. आपके पास वो अलौकिक रफ्तार आ जाएगी। Are you with me? क्या आप मेरे साथ Are हैं? you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Why am I speaking about supernatural speed? क्यों मैं अलौकिक रफ्तार के बारे में बात कर रहा हूँ? Because क्योंकि when Elijah जब एलिया was in a depression जब वो निराशा में था and he was like, God, kill me. और वो ऐसे बोल रहा था कि प्रभु मुझे मारना I है, मुझे wanna मार दे, die. मैं मरना चाहता हूँ, I want to die. मैं मरना चाहता हूँ, I have suffered a lot. मैं बहुत ज्यादा झेल चुका हूँ, I am already putting my feet in the graveyard. मैं पहले ही अपने पैर को कब्र में डाल चुका हूँ, Enough. बहुत हुआ, I'm done, Lord. मैं अब बहुत झेल चुका हूँ। My fathers were better than you. My मेरे, father were better than you. मेरे पिता भी आपसे बेहतर थे, मेरे से बेहतर थे. मेरे से बेहतर थे, My family is better than you. मेरा परिवार मुझसे बेहतर My था, pastor is better than you. Not me. मेरे पास्टर मुझसे बेहतर है, Better you kill me. तो इससे अच्छा है कि आप मुझे मार दो। Hello. You know what happened? पता है क्या होता है? An encounter came. एक मुठभेड़ आई, An encounter came एक मुठभेड़ आया with a bread and water. रोटी और पानी के साथ। You know what happened? पता है क्या हुआ? This water and bread came and spoke to him. ये पानी और रोटी आया और उसने उससे बोला। You know what the bread spoke to Elijah? पता है रोटी ने एलिया से क्या बोला? I am the bread who have come from heaven. मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से आया हूँ। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? And this water speak to Elijah. और ये पानी एलिया से बोलता है, If you drink me, अगर तू मुझे पिए you will be never depressed again. तो दोबारा कभी निराशा में नहीं जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. You know then what happened? आपको पता है फिर क्या हुआ? Elijah woke up. एलिया उठ गया, He stood up वो खड़ा हुआ and he was told, और उसे बोला गया, go, you have to run. जा तुझे भागना है, You know दौड़ना what? है। Where he ran? और पता है वो कहाँ भागा? He ran in a speed more than the speed of the chariot of Ahab. वो आहाब के रथ की रफ्तार से भी तेज दौड़ा। Possible? क्या ऐसा संभव है? Impossible. असंभव, Impossible by man. मनुष्य के द्वारा असंभव है, But it is not impossible by God. पर परमेश्वर के लिए यह संभव नहीं है। Because you know what? पता है क्या? When Elijah came into a season of depression, जब एलिया निराशा के समय पर आया, what have to be done in that time period? जो उस समय काल में होना था Delayed. वो उसमें देरी हो गई। एलिया डिप्रेस होके बैठ गया, ठीक है? एलिया एक साल डिप्रेस होके बैठ गया। Elijah sought, he been in a position, example for 1 year. और उसे जो 1 साल में मिलना था, Elijah been in a place, example as for 1 year. और एलिया एक ऐसी जगह पर बैठ गया, अगर दृष्टांत दूं तो शायद 1 साल बैठ गया।
Are you with me? क्या आप मेरे साथ है? So 1 साल के टाइम पीरियड में God have to do a lot with him. परमेश्वर को उसके लिए बहुत कुछ करना था. God have to do a lot through him. परमेश्वर को उसके द्वारा बहुत कुछ करना था. That 1 year of depression wasted. और वो 1 साल की जो निराशा थी वो उसने उससे ले लिया. Wasted. वो बर्बाद हो गया. The time is delayed. वो समय बर्बाद हो गया. But when he stood up, पर जब वो खड़ा हुआ, by an encounter, उस मुठभेड़ के साथ, by an encounter, मुठभेड़ के द्वारा, that encounter, वो मुठभेड़ reset his speed. उसकी रफ्तार को उसने रीसेट कर दिया. What he could gain done in 1 year, जो वो 1 साल में कर सकता था, a man is doing within 1 month. वो 1 महीने में कर रहा था. He is running by the speed more than of the chariot of वो Ahab. अहाब के रथ के तेज रफ्तार से भाग रहा था. Are you with me? क्या आप मेरे साथ? Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बता My सकता age is 25. हूं? मेरी एज 25 years है. And many times और बहुत बार, I have been fought by man of God. बहुत बार मुझे परमेश्वर के दासों के द्वारा मेरे ऊपर हमला किया गया है. How? कैसे? Why he is speaking like this? कि वो क्यों ऐसा कर रहा है? Why is he prophesying like this? इस तरीके से क्यों भविष्यवाणी कर रहा है? Why is he walking like this? क्यों इस तरीके से चल रहा है? Why is he dressing like this? इस तरीके से क्यों पहन रहा अरे है? बाबा, I understood one thing. मैं एक बात समझ गया. What they could not do in 50 years, जो ये 50 साल में नहीं कर पाए, I was able to do it in 2.5 years. वो मैं 2.5 साल में कर पा रहा हूं. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? That's the speed of a prophet. ये है भविष्यवक्ता की रफ्तार. That's a speed when the Lord sets your timeline. ये वो रफ्तार है जब परमेश्वर आपके लिए समय काल को चुन के रखता है. That's why Daniel is called in the major books of prophets. इसलिए दानियल को भविष्यवक्ताओं की महान भविष्यवक्ताओं में गिना जाता है. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Theologically, धर्मशास्त्र के अनुसार it is said ऐसा कहा जाता है. Daniel is in the major prophets because the books numbers are lot. दानियल इसलिए एक महत्वपूर्ण भविष्यवक्ताओं में से आता है क्योंकि बहुत सारे नंबर हैं. चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं. That's why theologically Daniel is in the major prophets. इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार दानियल जो है वो महत्वपूर्ण भविष्यवक्ताओं में से है. But spirit realm में, पर आत्मिक स्तर पर this Daniel is the one who is shifting the timeline. ये दानियल वो है जो उस समय काल को बदल रहा है. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Isaiah is the one who is speaking about the timeline which is to come. यशाया वो है जो उस समय काल के बारे में बात कर रहा है जो आने वाली है. Isaiah is speaking about the Messiah who has to come. यशाया उसके बारे में बात करता है जिस मसीहा को आना है. Isaiah is speaking about the Cyrus which has to come. यशाया उसके बारे में बात करता है जिस कुस्रू को आना है. But Daniel, पर दानियल, he is standing between the prophecy. और जो दानियल है वो बीच में खड़ा है. The time when the prophecy was spoken. जिस समय पर वो उस प्रोफेसी को बोला गया. And the time when it has to fulfill. और जिस समय पर उस भविष्यवाणी को पूरा होना है. Standing in the gap. वो उस खाली स्थान पर खड़ा He है. is holding on to the prophecy which spoke. वो उस भविष्यवाणी को पकड़े हुआ है जो बोली गई है. And he is also holding on to the prophecy which has to come. और वो उस भविष्यवाणी को भी पकड़े हुआ है जो आगे आने वाली है. Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? Bible says बाइबल बताती है about Cyrus कुस्रू के बारे में that I have chosen him as a Messiah कि मैंने उसे एक मसीहा के तौर पर चुना है for my people. मेरे लोगों के लिए. Means Father God इसका मतलब पिता परमेश्वर is denoting Jesus with Cyrus. वो यीशु को कुस्रू के द्वारा चिन्ह के द्वारा प्रकट कर रहा है. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? He is shown as a deliverer of the people of God. उसे लोगों का छुटकारा करने के लिए दिखाया See, गया. I'm not speaking in air. मैं हवा में नहीं बोल रहा. But it is written in your Bible. पर ये आपकी बाइबल में लिखा है. Isaiah 44 and 45. यशाया 44 और 45 He is a shepherd to my people. कि वो मेरे लोगों के लिए चरवाह है. Who is a good shepherd? एक अच्छा चरवाह कौन है? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Cyrus is called by God. कुस्रू को परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया. Isaiah chapter 45. यशाया 45 He is my anointed one. वो मेरा अभिषिक्त है.
And Jesus is coming, said, I am the anointed of God and the hand of the Lord is upon me. यीशु कहता है कि मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूँ और परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है. It means God is bringing Cyrus and Jesus into the same position. इसका मतलब परमेश्वर कुस्त्रु को और यीशु को एक ही स्थान पर लेकर आ रहा है. As a deliverer. छुटकारा देने के लिए. As a deliverer. एक छुटकारा देने Is वाला. anyone listening to me? क्या कोई मेरे साथ है? When this is happening, जब ये सब हो रहा था, Daniel is standing in the middle. तो दानियल जो है वो उस खाली स्थान पर खड़ा है. He's standing at the time, he's seeing the time when the prophecy is spoken. वो उस समय को देख रहा है जब वो भविष्यवाणी बोली गई. He's also seeing the prophecy which has to come. वो उस समय को भी देख रहा है जिस समय पर वो भविष्यवाणी पूरी होनी है. क्या आप मेरे साथ हैं? Standing in the gap. वो उस बीच में खड़ा हुआ है. Standing in the gap. वो उस खाली स्थान पर खड़ा Why है. he is standing in the और gap? वो उस खाली स्थान पर क्यों खड़ा है? Because the season has come where God have to descend again. क्योंकि वो सीजन और वो समय आ गया है जब परमेश्वर को दोबारा उतरना होगा. Why the season has come where God have to descend again. वो समय आ चुका है जब परमेश्वर को दोबारा उतरना होगा. And Daniel is standing in the midst. और दानियल उस समय के बीच में खड़ा है. Holding on to the prophecy spoken. उस भविष्यवाणी को पकड़े हुए जो बोली गई है. Holding on to the prophecy which has to come. उस भविष्यवाणी को भी पकड़े हुए जो पूरी होनी है. And shifting the time period of the future to the present. और उस भविष्य के समय को वर्तमान में ला रहा है. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? He is pulling the prophecy of the future to the present. वो भविष्य की भविष्यवाणी को खींच रहा है वर्तमान में. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? That's who is a prophet. ये है जो भविष्यवक्ता होता है. That's what a prophet is. ये है जो भविष्यवक्ता होता That's है. what a prophet is. ये है जो भविष्यवक्ता It होता means, है. इसका मतलब when the Lord will start to move in your life in a realms of prophetic. जब परमेश्वर का आत्मा भविष्य सूचक स्तर पर आपके जीवन में काम करने You know लगेगा. what happens? आपको पता है क्या होता है? Timeline shift for you. समय काल आपके लिए बदल जाता है. Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? Pastor Surinder is there. पास्टर सुरेंद्र यहाँ है. My spiritual son. मेरे आत्मिक पुत्र. I spoke this word over him मैंने उनके लिए इस शब्द को कहा in 2024. 2024 में. 24? In 2024, I spoke to him, you will buy the land. 2024 में मैंने उनसे कहा कि आप ये जमीन खरीदोगे. Then after few months, he said, I bought it. और कुछ महीने बाद उन्होंने कहा मैंने खरीद ली. In 2025, 2025 में March, we had a crusade in his place. मार्च में हमने उनकी जगह पर क्रूसेड करा. He rented our land. उन्होंने हमारी जगह को He rented a land. उन्होंने एक जमीन किराए पर ली. And in that land, और उस जमीन पर we were having a crusade. हमने क्रूसेड करा. After the crusade, क्रूसेड के बाद the Lord spoke to me, you will buy this land also. परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि ये जमीन भी आप खरीदोगे. Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बता Then the सकता Spirit of the Lord spoke to हूँ? me. परमेश्वर की आत्मा ने फिर मुझसे कहा By the end of 2025, you will dedicate a new church building. 2025 के अंत होने से पहले आप एक नई बिल्डिंग चर्च के लिए आप डेडिकेट The करोगे. prophecy of buying another land, March 2025. और जो दूसरी जमीन को खरीदने की भविष्यवाणी थी वो मार्च 2025 की. And also building construction 2025 March. और जो कंस्ट्रक्शन शुरू होना था वो भी मार्च 2025. Prophecy is done. भविष्यवाणी पूरी हुई. Amen. आमेन. Prophecy is spoken. भविष्यवाणी बोली But गई. you know what? पर पता है क्या? In 2025, 2025 में in the month of December, दिसंबर के महीने में he called me for the dedication of the church building उन्होंने मुझे चर्च बिल्डिंग की डेडिकेशन के लिए बुलाया and told me और मुझे कहा the church building is also built, the land is also bought. चर्च बिल्डिंग की भी बन चुकी है और जमीन भी खरीदी जा चुकी And I है. asked him, और मैंने उनसे कहा how you managed it? आपने कैसे इस बात को मैनेज करा? He said, I also don't know. उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता. God provided. परमेश्वर ने प्रबंध करा. God kept on sending Cyrus. परमेश्वर कुस्त्रों को भेजता गया. God kept on working through people. परमेश्वर लोगों के द्वारा कार्य करता रहा. Who is this Cyrus? कुस्त्रु कौन है? He is not a believer, वो एक विश्वासी नहीं है. but the Lord steered his spirit. पर परमेश्वर ने उसकी आत्मा को विवश करा. For what? किसके लिए? Work for Nehemiah. नेहमाया के लिए काम कर. Work for Ezra. एजरा के लिए काम कर. Work for Daniel. दानियल के लिए काम कर. Hello. Work for Zerubbabel. जरुब्बाबेल के लिए काम कर. Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Are you with क्या me? आप मेरे साथ हैं? That's what a timeline can shift in your life. और इसी प्रकार से समय काल आपके लिए परिवर्तित हो सकता Are है. you with me? क्या आप मेरे साथ Are you with me? क्या आप मेरे साथ The enemy is always wanting to make things delayed. शत्रु हमेशा चाहता है कि वो चीजों में देरी लाए. But पर God comes in the gap.
यीशु उस खाली स्थान पर आता है and makes the gap filled by the shift of the timeline. और उस खाली स्थान को भर देता है वो समय काल को परिवर्तित करके। What you have to gain after 50 years, जो आपको 50 साल बाद पाना है, the Lord will bring it to you within 5 years. वो परमेश्वर आपके लिए 5 साल के अंदर ले आएगा। Hallelujah. 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 That's our timeline shift. और इसी प्रकार से समय काल And परिवर्तन में आता I है। know everyone sitting here, और मैं जानता हूँ हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, you may or may not become a prophet, आप भविष्यवक्ता बने या ना बने, but पर you will walk in the timeline and season of the prophetic. आप भविष्य सूचक के समय काल में चलेंगे। You will walk in the season of the prophetic. आप भविष्य सूचक के सीजन में चलेंगे। Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बता Can I सकता tell you हूँ? something? क्या मैं आपको कुछ बता सकता You हूँ? know what does it mean? पता है इसका मतलब क्या है? You may not prophesy, आप हो सकता है भविष्यवाणी ना करें, but you may see visions. पर आप दर्शन देखेंगे। You may speak a prophetic word. आप भविष्य सूचक शब्द बोलेंगे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? What you do, it will be prophetic. आप जो करेंगे वो भविष्य सूचक हो जाएगा। Are you with me? Where you go, it will be prophetic. आप जहाँ जाएंगे वो भविष्य सूचक हो जाएगा। Whom you meet, it will be prophetic. आप जिन लोगों से मिलेंगे वो भविष्य सूचक हो जाएगा। Why? क्यों? Because you are walking in the timeline. क्योंकि आप उस समय काल में चल रहे हैं। Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बता Once I सकता was ministering in Chandigarh, हूँ? एक बार मैं चंडीगढ़ में सेविकाई कर रहा I था। was sitting on the stage, मैं स्टेज पर बैठा था and suddenly the Spirit of the Lord asked me to see the banner. Banner. और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे वो बैनर देखने को कहा And he asked me to read your name. और मुझे अपना नाम पढ़ने के लिए कहा। There was many guests, बहुत सारे गेस्ट्स थे, pastor so and so, pastor so and so, but I saw there was no pastor in front of my name. बहुत सारे पास्टर थे, उनके नाम थे, पर मैंने देखा मेरे नाम के आगे कोई भी पास्टर्स के नाम नहीं थे। But they wrote Prophet Isaac Thomas. उन्होंने लिखा प्रोफेट आइजक थॉमस। And the Spirit of the Lord asked me, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे पूछा focus on the word prophet. प्रोफेट शब्द के ऊपर ध्यान दे। Amen. So I just broke this word, prophet. तो मैंने उस शब्द को तोड़ दिया, प्रोफेट। Pro means expert, professional, right? When I search the full form of FET, P-H-E-T, जब मैंने PHET फेट की फुल फॉर्म को सर्च करा, there was something called quantum physics. एक क्वांटम फिजिक्स जो हम एक चीज होता देखते है। हैं फिजिक्स में, So that is the study of light, वो है रोशनी का अध्ययन, the speed of light. रोशनी की रफ्तार। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? When we calculate the length of certain place, it is measured in kilometers on earth. जब हम पृथ्वी पर कुछ किसी दूरी को नापते हैं तो वो किलोमीटर में होती है, Amen. But in space, पर आकाश मंडल पे it is measured in light speed. ये लाइट स्पीड में रोशनी की रफ्तार से नापी जाती So है। when I read FET means quantum physics and the study of light. तो मैंने पढ़ा फेट का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, मतलब रोशनी की पढ़ाई, रोशनी So का I अध्ययन। understood something, तो मैंने कुछ समझा, that when this prophetic move, जब ये प्रोफेटिक, ये भविष्य सूचक चलन में होता है, it means it is something moving in the speed of light. इसका मतलब कुछ ऐसी चीज जो स्पीड की लाइट से, रोशनी की तेजी से चल रही है। Something is moving by the speed of light. कुछ ऐसी बात जो ज्योति की रफ्तार से चल रही है। You know why? पता है क्यों? We are the sons and daughters of light. हम उस रोशनी के पुत्र और पुत्रियां हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ Are हैं? you with me? क्या आप मेरे साथ So हैं? when you get into this prophetic, तो जब आप इस भविष्य सूचक में आ जाते हैं, when you come into it, जब आप इसके अंदर आ जाते you हैं, know what happens? पता है क्या होता है? You are just walking. आप सिर्फ चल रहे हैं, You are just doing your job. आप बस अपना काम कर रहे हैं, But automatically, पर खुद ही what people do in 3 weeks, जो लोग काम 3 हफ्ते में करते हैं, you complete in 3 days. आप उसे 3 दिन में कर देते हैं। And they are surprised. आप उसे 3 और पर उसके लिए They are surprised. उसके लिए और लोग हैरान हो जाते हैं, And when they are surprised, और फिर लोग हैरान हो जाते हैं, they are jealous of you. वो आपसे जलन रखने लगते हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? So when they jealous about you, और जब वो आपसे जलन रखते हैं, you don't care about them.
आप उनकी परवाह नहीं करते। You keep on walking in light. आप ज्योति में चलते रहते You हैं। keep on walking in आप light. ज्योति में चलते रहते Because हैं you are in supernatural क्योंकि speed. आप उस अलौकिक में चल रहे हैं, Because you are in supernatural speed. क्योंकि आप अलौकिक रफ्तार में चल रहे You हैं, are in supernatural आप speed. अलौकिक रफ्तार में चल रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Lord is moving very beautifully. परमेश्वर बहुत ही सुंदर रूप से चल रहा है, The Lord is moving very beautifully. बहुत सुंदर रीति से चलन में है। Get ready to move in the speed of light. तैयार हो जाए।